Hello students, in the previous lecture we have gone through the numericals related to the Bohr postulates. Okay, now let us move to the next theory, that is Bohr theory and concept of quantization. Now what is quantization? A noticeable achievement of Bohr theory of structure of atom was that it could able to predict the values of energy which an electron can have while revolving around the nucleus of the hydrogen atom. मतलब बोर की थियोरी का एक पॉसिबल अचीवमेंट बहुत अच्छा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है इन हाइड्रोजन एटम, टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो वो कितनी एनर्जी से रिवॉल्व हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला. That is, according to the Bohr's, the electron in hydrogen atom can have energy values given by the relationship energy of the electron is equal to minus 1311.8 kilojoules n square. What is n? N is the integer. Now this n can never be fractional. It is always a possible whole number. So n cannot have a fractional value, so that electrons cannot have all possible values of energy, but only those values for which n is a whole number. Thus, electron can take only a certain fixed value of energy. Okay? It means that when an electron gains or loses energy, it does so in such a way that n has a value which is a whole number. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है एनर्जी तो उसकी n की वैल्यू एक ऐसी होगी कि वो होल नंबर फॉर्म में होगी. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेन और लूज एनर्जी इन अ कंटिन्यूस मैनर. ये हमने आगे भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में लूज नहीं करता, वो डिस्क्रीट मैनर में लूज करता है. दैट इज, वो एमिट और एब्जॉर्ब करता है. This leads to the concept of quantization of energy. Now, what is quantization of energy? Which means that radiant energy is emitted or absorbed in bursts or jumps rather than in continuous flow. ठीक है, जैसे इसको मैं क्वांटिसाइजेशन को आपको कैसे बता सकती हूँ. जैसे आप लेडर, यू कैन सी दिस इज अ लेडर. योर पोजिशन ऑन द लेडर कैन ओनली बी ऑन वन स्टेप एंड नेवर इन बिटवीन. इट कैन ओनली बी आइदर इन द फर्स्ट, either in the second, either in the third, either in the fourth completely. अगर आप एक पैर यहाँ रखोगे, एक पैर हवा में रखोगे तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे, you will fall down. Okay, so your position on the ladder can only be on a step and never in between. So this step in the ladder are similar to the energy levels in the orbit of an atom. ठीक है, सो ये किसके सिमिलर है? एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट्स इन एन एटम, एंड दैट एनर्जी लेवल इन एन एटम इज नोन एज क्वांटिसाइज्ड. समझ में आया व्हाट इज क्वांटिसाइजेशन ऑफ एनर्जी? मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी. Bohr theory of atomic structure was quite successful, बहुत successful था in explaining the stability of an atom and the spectrum and the emission of line spectrum of hydrogen atom. It was a very great success. But there were certain limitations or drawbacks seen after sometimes in Bohr's model also. So let us see that. First, Bohr model of an atom could not account for finer details, that is doublet, or you can say two closely spaced lines of hydrogen spectrum observed using sophisticated spectroscopy techniques. मतलब he was only able to explain us the line spectrum of singlet form. सिंगलेट फॉर्म में अगर आपको ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है N1 एनर्जी लेवल से वो N2 में जा रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर पाया था. बट जब उसको और डिटेल में स्टडी किया गया अंडर अ प्रॉपर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक मेथड्स, तो वहाँ पे देखा गया कि देर आर सर्टन फाइन लाइन्स ऑल्सो सीन. ठीक है, सिंगल लाइन का तो समझ पाया, बट और बहुत सारी ऐसे फाइन लाइन्स थी जिसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, कि ये फाइन लाइन्स आ कैसी रही है, क्यों हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी हम बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स देख सकते हैं. ठीक है, वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नेक्स्ट,
Bohr model of an atom could not explain the line spectrum of atoms containing more than one electron, or you can say multi electron atoms. ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम हमें सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स का एक्सप्लेन कर पाया था. अगर उसके पास एक एटम के पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है और उसका जब लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था तो बोर उसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. He was only able to explain for the line spectrum of hydrogen, or you can say hydrogen like atom. जैसे हेलियम प्लस वन तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम Li2+ तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, सेम वे बेरिलियम +3 आयन. तो वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम्स के हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ही लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाया. और अगर पॉली एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के पास, तो अगर उसका लाइन स्पेक्ट्रम आया, उसको बताया गया कि आप अपने क्वांटिसाइज एनर्जी के बेसिस पे उसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट. ओके, नेक्स्ट थर्ड, बोर थ्योरी fail to account for the effect of magnetic field on the spectrum of atoms or ions. मतलब बोर को जब बोला गया कि आप अपनी थियोरी को जब आप कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एटम को प्लेस कर रहे हो और उसकी लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करने बोली, तो बोर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, it was observed that when the atom emitted radiation is placed in a strong magnetic field. मतलब जो एटम आपका रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है, उसको जब हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देयर वर मैनी लाइन सीन. वो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो बहुत सारी लाइन्स में स्प्लिट हुई. And this phenomena is known as Zeeman effect. So what is Zeeman effect? When the atom that emits radiation is placed between the strong magnetic field, that type of effect is known as Zeeman effect. ठीक है, सो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो हाइड्रोजन एटम ने सिंगल लाइक एटम्स ने सिंगल लाइन शो किया. दैट वाज क्वाइट गुड, एक्सप्लेन बाय बोर. बट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में उस एटम को रखा तो देयर वर सेवरल लाइन्स, यू कैन सी देयर आर 3 लाइन्स और मेनी सेवरल लाइन्स. तो ये लाइन्स को जब एक्सप्लेन करने बोला गया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से आए, ठीक है, सो बोर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन इट. एज यू कैन सी, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो है तो आप प्रॉपर देख सकते हो, बट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो आप बहुत सारे लाइन्स देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, Bohr theory also could not explain the effect of electric field. Bohr theory was not able to explain as the effect of electric field known as Stark effect. अगर मैग्नेटिक फील्ड का हुआ तो Zeeman effect एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ तो Stark effect. ठीक है, सेम वे एज यू कैन सी बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही है. ठीक है, बट बोर ने सिंगलेट का ही एक्सप्लेन करवाया. फर्स्ट पॉस्टुलेट सेल्फ सेज कि जब हम ये लाइन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिफ्थ, बोर थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच वी विल स्टडी इन द लेटर, दैट इज क्वांटम थियोरी में हम देखेंगे. क्वांटम थियोरी में हमको शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स पता चले, arising out the directional bonding between the atoms. ठीक है, he was not able to explain us that कि what is the shape, how the electron is revolving, either it is in 2 dimension or in 3 dimension. He was not able to explain. This is a simple 2D dimension. In the electrons क्या बोल रहे थे, electrons revolve हो रहे around the nucleus. ठीक है, बट जब 3D डायरेक्शन में देखा गया तो z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस के अलॉन्ग तो हमें एक अलग ही बॉन्डिंग जैसा दिखा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे किसी एक लोब के सामने रिवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्शन टू द बोर्स थियोरी, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्शन और द मेन लिमिटेशन ऑफ बोर थियोरी केम फ्रॉम द न्यू प्रिंसिपल, नेमली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. किसके नेचर पे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. एज बोर सेड, बोर ने क्या बोला, बोर ने यह इंट्रोड्यूस किया हमको आइडिया कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ
सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना ही वो एनर्जी लूज कर रहा है ना ही वो एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, ये हमको बोर ने बोला। बट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है, कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 1 मिनट के बाद भी वहीं रहेगा, कि आफ्टर 2 मिनट्स वो कहाँ रहेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आया था आपका, हेजनबर्ग ने अराइज किया था। सो दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द इट्स पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक हम लोग वेव पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर के आइडिया के बेसिस पे पढ़ रहे थे, एंड पॉइंटेड आउट टू द पाथ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, एंड कैन नॉट बी वेल डिफाइंड, दस दिस ओवररूल द बोर आइडिया ऑफ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। कि दे आस्क यू, they pointed out Heisenberg कि how can you justify कि whether the electron is revolving around the circular path is in a fixed position, आप कैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हो। बोर की थियोरी के बेसिस पे वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट कर रहे हैं, बट हेजनबर्ग ने बोला कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आप कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे यहाँ है, एक टाइम पे यहाँ, एक टाइम पे कहाँ रिवॉल्व हो रहे, क्यों वो सर्कुलर पाथ में है, दे कैन हैव द डिफरेंट डायरेक्शन एंड द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, तो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ बोर के लिमिटेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। सो गो थ्रू द वीडियोज एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क। थैंक यू।